Hello students. So in this class today we will study a fifth chapter, that is arithmetic progression. All of you know that our syllabus has been reduced by CBSE to an extent of 30%. So not most of the parts of all chapters has been reduced, but still we will study a lesser part, which already is a bad sign that the pandemic will not continue, but the effect of studying a very less part of mathematics will continue with you if you proceed to study science or take up some higher courses in mathematics. So I'd suggest all the students, if you have time, so please complete all the portions, and please try that you do not skip any part of your book. Okay. So now today we will start the chapter, that is arithmetic progression. Before going to the chapter, let me ask you some. Let me allow you to think about something. Two terms I'll tell you, that is compound interest and simple interest. All of you have studied these two terms in your class 8, class simple interest you have studied in class 6 or 7 or so on. So what is the basic difference between these two? The simple interest, what happens in simple interest is, like suppose you have taken a loan, I have borrowed some 500 rupees from someone, and the person has asked you to pay 5 rupees per each 100 rupee you have taken. Okay, so for the duration of, let's say, for 1 month, for each month, for 100 rupee you have to pay 5 rupees as interest. So what amount will you pay as an interest after 1 month? So per 100 rupee, 5 rupees, you have taken 500, so that gets multiplied by 25 rupees for the first month. In the second month as well you will get 25 rupees. In the third month as well you will get 25 rupees that you have to pay as an interest every month. Okay, till you do not pay back the 500 rupees that you have borrowed. So but what happens in compound interest is, let's say you have taken 500, and then after 1 month your interest comes out as 25 rupees. So that principal itself changes. What is the principal? What is the amount that you have borrowed is 500. The principal itself becomes a new one added when it is added by the interest, added with the interest. Okay, so इसमें क्या होता है कि आप 500 रुपीज का रुपीज अगर बोरो करते हो सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपका ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये हर मंथ सेम रहता है. सो फर्स्ट मंथ पे अगर आपका ये 500 हुआ है, आपका टोटल अमाउंट दैट यू टेकन, सेकेंड मंथ में दिस विल क्यूमुलेटिवली बिकम 525, this will then become 550, and then this will become 575 and so on. Okay, ये होता है आपका हर मंथ में आपको टोटल इतना अमाउंट रिटर्न करना है. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, this is for SI, that is simple interest, and this is for CI, that is compound interest. What happens in the compound interest is, आपने 500 rupees बोरो किया हुआ है and the interest as per this becomes 25 rupees. So after the end of 1 month you have some 525 rupees to pay, right? But what happens in the second month is, your interest gets calculated from this as a principal. Simple interest में principal हमारा fixed होता है, 500 के साथ में you add 25, then to that भी you add 25 and so on. But इधर principal change हो जाता है, right? So next principal आपका 525 हो जाएगा. तो ये दोनों में what is the difference? Why I am talking about this is, इधर देखो there is a pattern that is maintained. 525 ऐड किया, you get 525, then 50 rupees ऐड किया, then 550, then वापस आपने 50 rupees ऐड किया, you get 575. बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट पहले मंथ में आपका तो 525 हो गया, बट सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स ये अमाउंट सेम नहीं रहता. दैट यू कैन कैलकुलेट 50 टू समवेयर 100 रुपीज में 5 रुपीज, तो 525 में कितने रुपीज आपके इंटरेस्ट आएंगे, दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम योर यूनिटरी मेथड. जो आपका न्यू अमाउंट हो जाएगा that will be the new principal. Again उस पे आपको ये फॉर्मूला डालना है, you will get a different number here. Okay,
सो ये जो जितना सिंपल से 25 25 25 आप ऐड करते जाते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा कोई पैटर्न नहीं मेंटेन होता. ओके, तो इधर इफ यू गेट 525 हियर, इधर आपको समवेयर अराउंड 557 मिल गया, इधर आपको 589 मिल गया. ऐसा कुछ एग्जैक्ट यही नंबर नहीं आएगा, बट एग्जैक्टली समवेयर समवेयर ऐसा इसे कुछ नंबर आएगा, जैसे आपको कुछ परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा. ऐसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आपने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाम के कुछ टर्म्स पढ़े होंगे. ओके, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 9 physics. Speed and velocity are two different things, not by the magnitude but by the direction, that we are not going to discuss. So what happens, what is the difference between these two? Let आप किसी बाइक पे जा रहे हो, आपका बाइक इधर से स्टार्ट हुआ. ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑफ योर बाइक. आफ्टर गोइंग 1 hour you reach at 15 meters, 15 kilometers. 1 घंटा के बाद में आपने देखा कि आपने 15 किलोमीटर कवर किया हुआ है. ठीक है, so how do you write the speed? That is 15 kilometer per hour is your velocity in a such a direction. तो ये आके आप पहुंचे प्लेस बी पे. तो देन अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम योर प्लेस बी एंड देन यू रीच प्लेस सी, थर्ड प्लेस. इधर आप आके देखते हो कि आपका स्पीड हो गया है 50. इधर आपने 10 किलोमीटर कवर किया हुआ है, एंड देन यू चेक इन अ स्पीडोमीटर दैट द डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये ड्यूरेशन में आपने 15 किलोमीटर कवर किया हुआ था, ये डायरेक्शन में आपने 10 किलोमीटर कवर किया हुआ है. अगेन आप ट्रैवल करते हो टू प्लेस डी, इधर आके आप देखते हो ना आपका 50 हो गया है, तो थोड़ा स्पीड आए हो. व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड? दैट इज 25 किलोमीटर्स. इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं? स्पीड एज एन वेलोसिटी. दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हाई? क्योंकि हर एक घंटे में आपका वेलोसिटी चेंज होता जाता है. बट व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन एन यूनिफॉर्म स्पीड, लेट दिस बी द प्लेसेस. अगर ये 0 से इधर स्टार्ट करता है, here it reaches 15, then here it reaches 30, then here it reaches 45, then if it goes forward it reaches at 60 and so on. इधर देखो आपके हर घंटे में इसने सेम डिस्टेंसेस ट्रैवल किया हुआ है. फ्रॉम ए टू बी 15 किलोमीटर्स, फ्रॉम बी टू सी 15 किलोमीटर्स, फ्रॉम सी टू डी अगेन 15 किलोमीटर्स, एंड फ्रॉम डी टू ई इसने सेम 15 किलोमीटर्स ही ट्रैवल किया हुआ है. तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दिस इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल. अगेन इसमें क्या होता है, हियर देयर इज अ पैटर्न टू बी फॉलोड. ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि एक बॉडी ए से शुरू किया, बी तक पहुंचने के बाद में उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है, एंड द बॉडी इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपको इससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट में 30 हुआ होगा, नेक्स्ट में 45 हुआ होगा, नेक्स्ट स्टॉपेज में 60 हुआ होगा एंड सो ऑन. बट अगर कोई आपको बोलता है कि वो नॉन यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो आपको नहीं पता अगर बी तक इसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है, यू डोंट नो सी तक इसका स्पीड 20 होगा कि 30 होगा कि थोड़ा स्पीड चला गया 50 होगा, वी डोंट नो. सो इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देयर इज अ पैटर्न. हर जगह पे आपको पता चल जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में एक घंटे में इसका स्पीड कितना होगा. बट while the body travels in a non-uniform speed, there is no pattern followed, क्योंकि हमको नहीं पता है सेकेंड प्लेस में बॉडी का स्पीड कितना होगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एंड सो ऑन. So why am I telling you all this is this term arithmetic progression. आपको एक और एग्जांपल मैं देती हूँ. That is, let's talk about some numbers, right? You take 1 2 3 4 and so on. ये हमारा सेट ऑफ ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, राइट? तो आई विल टेल यू ये सारे नंबर्स के हम दो काम करेंगे. ठीक है, पहले काम में क्या करेंगे, सारे नंबर के साथ में ना वी विल ऐड वन फिक्स्ड नंबर. ओके, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. ओके, सो लेट्स से मैंने क्या बोला था कि आप हम इधर एक एक नंबर, एक फिक्स्ड नंबर इनके साथ में ऐड करेंगे. लेट हम हर नंबर के साथ में 5 ऐड करते हैं. ठीक है, टू एवरी नंबर वी विल ऐड 5. तो इसके साथ में 5 ऐड करने से वी गेट 6, इसके साथ में 5 ऐड करने से वी गेट 7, इसके साथ में 5 ऐड करने से वी गेट 8 9 10 एंड सो ऑन, राइट? सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, हर एक नंबर के साथ में 5 मल्टीप्लाई करेंगे. यू गेट 5, देन यू गेट 10,
देन यू गेट 15, देन यू गेट 20, अगर इसमें बाद 5 आता तो इजी होता 25 एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज एक और भी करेंगे। वी विल टेक स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर्स। सो 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर कम्स 16, देन 5 का 25, देन 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने इधर ये सारे नेचुरल नंबर्स को लेके आई टुक अप 3 एक्टिविटीज टू बी डन। पहले में मैंने क्या किया, 1 फिक्स्ड नंबर इनके साथ में ऐड किया। सेकेंड वाले में मैंने क्या किया, 1 पर्टिकुलर नंबर में इन सबके साथ में मल्टीप्लाई किया। थर्ड केस में मैंने 1 पर्टिकुलर नंबर इन सबके साथ में थर्ड केस में मैंने इन सबका स्क्वायर लिया। ओके, सारे नंबर्स को मैंने स्क्वायर करके जितने नेचुरल नंबर्स है आई कंसीडर द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल दिस 3। आप पहले नंबर पे देखो, यहाँ पे ये 1 से शुरू होता था, यहाँ पे ये 6 से शुरू होता है। द स्टार्टिंग टर्म आर डिफरेंट, बट आप इधर अगर देखोगे what is the amount, what is the place that each number have jumped, इधर पे क्या था, that is 1 place इसने jump किया था। here also it jumped 1 place, here also it jumped as 1 place, right, 1 place, एक place इन्होंने jump किया हुआ है। इधर भी 1 place jump किया है, इधर also 1 place, 8 के बाद में after 1 place you get 9, then also you jump a 1 place, right? But here, what is the jump length? 5. This is 5. This is 5 and this is 5, right? Here you see this is 3. This is 5. This is 7. This is 9. This is 11. Right? तो अभी बताओ इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये दोनों पहले केसेस में आपका ये जंपिंग का लेंथ सेम होता है, ये कितना प्लेस जंप किया है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, बट हियर यू सी द नंबर चेंजेस। पहले में उसने 3 प्लेसेस जंप किए, सेकंड में इसने 5 प्लेसेस जंप किए, थर्ड में इसने 7 प्लेसेस जंप किए एंड सो ऑन। हियर these numbers are constant, here also these numbers are constant, and here also the jump length is constant, but इधर it is not constant। तो जहां जहां आप ऐसे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स देखोगे, वी कॉल दैट एज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक सीक्वेंस को जब किसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, कुछ नंबर्स को हम एक ऑर्डर में अरेंज करें, दैट्स एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अ सीक्वेंस। A sequence where you find a pattern, you find a fixed pattern of numbers are called as arithmetic progression series। okay, that ये जो पैटर्न एक फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज द नंबर्स आर सेड टू बी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस नंबर्स को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ऐसा बोलते हैं, बट इधर देयर इज नो पैटर्न फॉलोड। ठीक है, क्योंकि द नंबर्स आर नॉट कांस्टेंट, द जंप हाइट इज नॉट कांस्टेंट, तो दीज नंबर्स आर नॉट इन एपी, नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिक बात समझ में आई। अगर आप एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखते हो, यू राइट सम नंबर्स रैंडमली एंड you find this difference between the consecutive numbers is constant, then that sequence is said to be in an AP। but अगर ये आपका difference constant नहीं होता है, the numbers are not in AP। so now if I ask you a set of all positive odd numbers, odd integers, ये सब AP में है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑड नंबर कौन आता है, 1, then you get 3, then you get 5, then you get 7 and so on। आप इन सब के बीच में डिफरेंसेस देखो, this is 2, this is 2, this is 2। so are they in AP? yes they are in AP। okay, वैसे आप इवन नंबर देखोगे तो it start from 2, then 4, then 6, then 8 and so on। what's the difference? 2, 2, 2 and so on। so these are also in AP। बट अगर मैंने ये सबको स्क्वायर किया मैंने, सो ए का स्क्वायर आता है 1, 3 का स्क्वायर आता है 9, 5 का स्क्वायर आता है 25, 7 का स्क्वायर आता है 49। ये सबके बीच में डिफरेंसेस कांस्टेंट है या डिफरेंट है? द डिफरेंस इज डिफरेंट। इधर इट इज 8, देन दिस इज सम 16,
then this is 24 and so on. So this is not in AP. ठीक है, तो AP हमने क्या बोला, एक सेट ऑफ नंबर्स, जैसे आपकी बुक में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. ठीक है, तो ये 2, मुझे मेरा पहला नंबर अगर 2 है तो इसके साथ में मैं एक फिक्स नंबर ऐड करके आई गॉट 4, जो फिक्स नंबर ऐड करके आई गॉट द सेकेंड टर्म, वही फिक्स नंबर ऐड करके इफ आई एम गेटिंग द थर्ड टर्म, एंड सेम फिक्स नंबर ऐड करके इफ आई एम गेटिंग द फोर्थ टर्म ऑल्सो, देन द सीरीज इज द सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एन एपी. ठीक है, तो लेट मी टेल यू, ये जो डिफरेंसेस मैंने बोले they can be negative as well. For example, let's say I'm writing some numbers 5, 0, minus 5, 0, 5, 10, 15, 20 and so on. आपको कैसे पता इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? You have to subtract. किससे किसको subtract करोगे? सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर को, थर्ड नंबर से सेकेंड नंबर को, फोर्थ नंबर से थर्ड नंबर को, एंड सो ऑन. ये जंप कितना होता है? +5 places. Here 5, here +5, here +5. So whether this is in an AP or not? Yes. Similarly, let's say -10, -6, -2, 2, 6, 10 and so on. ये सब के बीच में डिफरेंसेस कितने हैं? This is 4, 4, 4, 4, 4 and so on, right? एक let's say 100, 95, 90, 85, 80, 75 and so on. What is the difference? Here this is -5, ये -5, ये -5, ये -5, ये -5. So difference is constant है. These are also in AP, these are also in AP. समझ में आया? तो बेसिकली AP में क्या होता है, ये जो आपका पहला नंबर है वो कुछ भी हो, अगर पहले नंबर का सेकेंड नंबर के साथ में जो डिफरेंस है, सेकेंड नंबर का थर्ड नंबर के साथ में वही डिफरेंस है, थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर के साथ में वही डिफरेंस है, एंड सो ऑन, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एन एपी. ठीक है, ये गए हमारे एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. लेट मी टेल यू हाउ डू वी राइट इट इन अलजेब्रिक टर्म्स. अलजेब्रा में हम इसको कैसे लिखते हैं? ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, द फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं. ओके, द फर्स्ट टर्म इज रिटन एज ए, एंड वो जो हमारा जो डिफरेंस है जो हर जगह में सेम होता है, दैट इज सेड टू बी द कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड एज डी. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं. एक और आपको एग्जांपल देती हूँ इधर. लेट्स से मैंने बोला कि आई हैव द फर्स्ट टर्म एज 5 एंड डी इज 7. तो राइट द सीक्वेंस. कौन सा सीक्वेंस एपी में आएगा लिखो. तो अगर पहला नंबर 5 है, मैंने अभी डेफिनेशन बोला था, एक फिक्स नंबर हम ऐड करते जाएंगे. तो कौन सा फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे? डी. ओके, सो 5 के साथ में आई एम एडिंग डी. कितना होता है? 12. अगेन उसके साथ में आई एम एडिंग डी, यू गेट 19. देन फिर से मैं 7 ऐड करती हूँ, यू गेट 26. फिर से मैं 7 ऐड करती हूँ, 33. फिर से मैं 7 ऐड करती हूँ, 40, 47, 54, 61 एंड सो ऑन. ओके, अभी आप वापस से डिफरेंसेस चेक कर सकते हो. कैसे? माइनस करके 7, इसको माइनस करके 7, इसको माइनस करके 7, इसको माइनस करके 7, अगेन यू सबट्रैक्ट दिस, यू गेट 7, दिस इज 7, 7, 7 एंड सो ऑन. ये देखो डिफरेंसेस सेम है, विच इज माय कॉमन डिफरेंस. तो हमें ये सीक्वेंस मिला कैसे? फर्स्ट टर्म के साथ में कॉमन डिफरेंस ऐड करती गई, मुझे ये सीक्वेंस मिल गया. तो अगर फिर मैं इसको लेके ये अलजेब्रा में हमारा सीक्वेंस बनाऊं तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म आएगा आपका ए. ओके, सेकेंड टर्म यू विल गेट एज ए प्लस द कॉमन डिफरेंस डी. थर्ड टर्म ए प्लस डी. सेकेंड टर्म के साथ में आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस. फिर थर्ड
थर्ड टर्म के साथ में आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन. तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? दैट इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d and so on. ठीक है. I'm giving you another example. If in a sequence I have a as -4 and d as -2, वो सीक्वेंस कैसे बनेगा? तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म -4 है, पहले हमने लिख लिया a, then I have said a plus d, that is -4 plus -2. आप ऐसे आराम से लिखते जाओ, you will understand. Then मैंने क्या बोला था? a plus 2d, then -4 plus 2 into -2. Next term becomes a plus 3d -4 plus 3 into -2 and so on. तो आपका ये फाइनल टर्म क्या हो जाता है? -4 -6 -8 -10 and so on. You get the sequence. You get the sequence which is in arithmetic progression where a is -4 and d is -2. I'll give you one more example. You can tell me whether it is in AP or not. Okay. Let's say 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6 and so on. Now you can tell me whether it is an AP or not. आप देखो differences find करो. This is 1 but this is -1. तो हमें थर्ड टर्म की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है. हमको पहले ही मिल गया कि दोनों का ये जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट है, अलग है दोनों का डिफरेंस. तो अगर एक भी टर्म का डिफरेंस अलग आता है, these are not in AP. ठीक है. I hope you all understood. मैंने जो बोलने की कोशिश किया. And I'm giving you the homework as exercise 5.1. You can tell me whether you have some doubts or not. And this was a completely unprepared video. So if there is any doubt, you can ask me in the classes or in the video classes or in texts and try to understand the questions of the exercise 5.1 and solve. Again, we will discuss if you need it in the video classes. Okay. Thank you.